चलिए ठीक है, वी शुड स्टार्ट सेकेंड लेसन, सेकेंड पोएम, एन एलिमेंटरी स्कूल क्लासरूम इन असलम, सेकेंड पार्ट. Because up to yesterday we came to read that how the student and children and the people of the slummy area are being neglected by the cartographers and other well dignitaries, even politicians also. How in their class where the symbol of the civilization, symbol of the education, the figure of the Shakespeare is hanging on the wall, pasted on the wall. Other maps are there, but there was no description about the slummy area in any map. Even Shakespeare never has not described anywhere in his compositions about the slummy area. All these are the satire. Even Shakespeare is the symbol of civilization, well education, well maintained civilization, and yet in the same room where the poster of the Shakespeare is fixed or had been pasted on the walls, that classroom is totally dusty, soiled, and dim. Light is there. There is no hole in the room to enter into the fresh air and rays of the sun. All these are the pitiful condition of the slummy area children and their school and environment and surroundings. Now, further, next line, surely, निश्चित ही, Shakespeare is wicked. WICKED, wicked means villain, दुष्ट, बुरा आदमी. राइटर कह रहे कि श्योरली शेक्सपियर जो है इन बच्चों के लिए एक बुरा व्यक्ति है. भले दूसरों के लिए सिविलाइजेशन का प्रतीक है, लेकिन इनके लिए एक बुरा विलेन व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, खराब और बुरा व्यक्ति है. द मैप अ बैड एग्जाम्पल, ये जो दुनिया का मैप वाल पे पेस्टेड है, that is the bad example for the slummy area children, because they are knowing very well that there is not even a little bit description about the slummy area and about them in this map and in the mind of the Shakespeare, in the composition of the Shakespeare. With ships and sun and love tempting them to steal. Tempting means having keen desire, longing, इच्छा. To steal, चुराना. Means वो जो मैप है, जो अदर फोटोज हैं, उसमें क्या है, तो नाव है, सूर्य है, सूरज है, उसकी रोशनी है, उजाला है, लव अफेक्शन के सिंबल है, सब कुछ चीजें हैं. वो सब चीजें इन बच्चों को अट्रैक्ट कर रही हैं, एंड दे वांट टू हैव, दे वांट टू रिसीव ऑल दोस, दे वांट टू स्टील देम इफ दे डोंट, दे आर नॉट एबल टू गेट. यदि वह पाने में सक्षम नहीं है तो वो तैयार है कि हम इसे चुरा लेंगे. And those children are ready to do so. वे बच्चे वैसा करने के लिए तैयार भी हैं. They are being attracted by these things, this scenery. इन सब चीजों को देखकर वे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, उनकी इच्छा हो रही है कि नहीं हमारे भी पास ऐसा हो, हम भी इस चीज को पाएं. For lives that slowly turn in their cramped holes. For lives, lives means यहाँ people, लोग, जीवन, वो लोग जो वहां रहते हैं, that slowly turn, जो slowly turn होते हैं, in their cramped holes. Cramped means दरार पड़ी हुई हो, छोटी छोटी दरवाजे और दरार जो पड़ी हुई हैं उनके जीवन में, उसमें वो रेंग रहे हैं, उनका जीवन चल रहा है और वो चाहते हैं कि उसमें से, उस मैप में से उन चीजों को ये हासिल कर लें, बट दैट इज अनफॉर्चुनेटली इम्पॉसिबल फॉर देम. From fog to endless night. देखो, fog and night both are the symbol of negativity. Their life is the symbol of fog. Slummy areas children's life is symbol of fog and night. अंधकार. There is nothing for them in the map, in the room, in the world, in the society, even around them. उनके इर्द गिर्द, उनके चारों तरफ कहीं कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली खाली. Hollowness is prevailing there. खोखलापन. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass.
यहाँ तक कि जो स्पेक्टेकल चश्मा यूज करता है वह भी इन बच्चों की जो झांकती हुई हड्डियां हैं उन्हें देख सकता है, उन चीजों के बारे में सोच सकता है कि इन व्हाट कंडीशन, पिटीफुल कंडीशन दे आर, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे कि बॉटल बिट्स, बिट्स में टुकड़े, जैसे कि पत्थर पे पटकने से किसी बॉटल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जर्रे जर्रे, पीस पीस में, that bottle is separated, scattered, those children has been scattered there in the map, lot of cities are scattered like the bottle bits, children are scattered, slummy area children and people are scattered in the slummy area like bottle bits, but nobody is caring about them. There is no description in the map about them and about their surrounding and other things. Like water on the stones, all of their time and space are foggy slum. Foggy slum. Slum means तो ऐसे ही धूल गर्द भरा हुआ गंदा एरिया. Foggy means कुहारेदार, जो कुहरे से कवर हो, पूरा छाया हुआ हो, कुछ धुंध भी धुंध हो, कुछ दिख ना रहा हो. Mean their future, their life, their time, everything is covered with the darkness. That is in uncertain future. Unavailability is there prevailing. So blot their maps. ब्लॉट में होता है धब्बा, उनके जो नक्शे हैं उस नक्शे में ये एक धब्बे के समान है. With slums as big as doom. Doom means होता है गुंबद. तो कह रहे हैं कि गुंबद की तरह से यह मैप में सब कुछ है लेकिन उनका स्लमी एरिया कहीं नहीं है. अनलेस, अब देखो यहां तक पोएट, that is the Stephen Spender, has described the pitiful, sorrowful, negative condition, hopeless, despondent condition of the slummy area and people and child. दुर्दिन, दुर्दशा, बदहाल स्थिति has been described by poet up to here, but now in last para poet is giving some useful suggestion by referring some dignitaries, and poet is saying unless, जब तक कि नहीं, गवर्नर यानी सरकार, इंस्पेक्टर अथॉरिटीज, विजिटर जो टूर करने वाले हैं यानी कि जो भूगोलविद्ता लोग हैं, घूमकर एरिया का, देश का मुआयना करने वाले हैं, जनसंख्या गिनने वाले हैं, ऐसे लोग, जब तक कि अधिकारी लोग, देश के जो रूलर्स हैं, पावरफुल, मीन्स ऑल दीज आर गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स, all these are the symbol of powerful authorities who can do something for them, having power in their hands. This map becomes their window. जब तक ये लोग नहीं चाहेंगे, और जब तक मैप बनाने वाला मैप ऐसा नहीं बनाता है कि जहां इनका भी वर्णन ना हो, अगर ये चाहे तो यह मैप इनकी खिड़की हो सकता है, इस मैप में इन्हें जगह दी जा सकती है, इनकी कंडीशन सुधारी जा सकती है. एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लिव्स लाइक कटकॉम्स, कब्र. यानी कह रहा है कि अगर ये लोग चाहें तो मैप हो सकता है, मैप में इसका वर्णन हो सकता है कि दशा सुधर सकती है, लेकिन नहीं, ये मैप, ये नक्शा, ये नजरिया, ये अथॉरिटीज, इनके एक्टिविटीज, ये सब इन स्लमी एरिया के लोगों के कब्र पे, जो कब्र का गुंबद होता है जिससे ढक दी जाती है, कब्र पक्का सीमेंट का बना के कवर कर दी जाती है रिजिडली, कह रहा है कि उस तरह से कब्र की छत है ये मैप. इस मैप के नीचे ये लोग दबे हुए हैं. मैप इज नॉट शोइंग देयर कंडीशन, एंड इफ गवर्नर एंड अदर अथॉरिटीज वुड वांट, then it might be possible that their slummy area and they could be mentioned in that map. उस मैप में इनका डिस्क्रिप्शन हो सकता है, उस मैप में इनका वर्णन हो सकता है और इनकी हालत सुधारी जा सकती है. अब आगे, दिस इज द फिलोसॉफिकल लाइन, 4-5 लाइन्स, and it applies for each and everyone, you, he, she, me, etc etc everyone. अब तक ये कह रहे हैं कि अगर ये लोग चाहें तो हालत सुधर सकती है, लेकिन ये लोग नहीं चाह रहे हैं,
तो अब क्या हो सकता है इनके फेवर में, स्लमी एरिया के लोगों में क्या किया जा सकता है इनके लिए? ब्रेक ओ ब्रेक, देखो पोएट करा है, ओ एड्रेसिंग करा है, ब्रेक ओ ब्रेक, तोड़ो, तोड़ दो सबके सब, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड, करें कि तोड़ दो सारे बंधन, सारे डर भय। ये डिग्निटरीज के बच्चे और ये लोग पार्क में टहलते हैं, ओपन फील्ड में टहलते हैं, इन बच्चों को जाने नहीं दिया जाता, भेदभाव किया जाता है, डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। तो तोड़ दो ये बंधन, इनके लिए भी ओपन फील्ड कर दो, ये भी आजाद आबाद हो जाए, जहां मर्जी हो जाए, जहां मर्जी हो वहां फ्रेश हवा लें। Their window they break the town and show the children to green fields and make their world, और उनके दुनिया को बना दो। Run azure on gold sands, ओपन रेगिस्तान में नदियों किनारे इन्हें दौड़ने दो, खेलने दो, फ्रेश हवा, फ्रेश पानी का एहसास लेने दो, क्योंकि उन पे इनका भी अधिकार समान है, बिकॉज ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ऑफ बिलोंगिंग टू द ह्यूमन रेस। मनुष्य जाति से संबंध रखना, मनुष्य जाति में जन्म लेने के नाते इनका भी अधिकार है कि ये ऐसा करें, घूमें फिरें, आजाद आबाद रहें, हर वह सुख सुविधा लें जैसे कि अदर लोग सुख सुविधा ले रहे हैं। Run azure on gold sands and let their tongues means जीभ, means let them टू स्पीक, और उन्हें फ्रीली बोलने दो। अगर बोलने पर डांटता दबाता है कोई तो दैट इज रॉन्ग। लेट देम बी स्पीक देमसेल्व्स फ्रीली, उन्हें आजाद आबाद फ्री बोलने दो। रन नेक्ड इनटू बुक्स, नेक्ड इनटू बुक्स मींस लेट देम ओपन देयर बुक्स, उन्हें भी पढ़ने दो, उन्हें भी शिक्षा लेने दो, उन्हें मुहैया कराओ, सुविधाएं अवेलेबल कराओ। The white and green leaves open, white and green leaves का मतलब each and everything must be equally available them. History, अब देखो लास्ट लाइन, history theirs whose language is the sun, sun is the symbol of force, power, unity, energy। तो कह रहे हैं कवि कि उन्हें इतना फ्री करो, इतना आजाद करो कि कम से कम वो बोलने लगे, फ्रीली बोले, कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई रोक टोक ना हो, कोई भेदभाव ना हो उनके साथ। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री देयर्स, इतिहास उनका होता है, whose language is the sun, जिसके जबान में दम होता है, जिसके बात में दम होता है, जिसके बात में फर्मनेस, रिजिडनेस होती है, दृढ़ता होती है, उनमें होती है। और किसी के बात में दम और दृढ़ता तभी हो सकती है जब वह एजुकेटेड होगा, जब वह शिक्षित होगा। सो लेट द स्टूडेंट्स ऑफ स्लमी एरिया बी एजुकेटेड, लेट देम avail all facilities whatever is being availed by the other dignitaries, people and their children. This is the philosophy of this poem and the whole of, if you want to ask anything then may ask, otherwise I am going to say bye.